Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Again, in this village of Nandur Madmeshwar, where there is a population of around 4,000 people, in last 1 month, at least 40 people lost their lives. Now, in this household where we are standing, you can see there is still a patient who is recovering. He just got discharged from the hospital. You can see there is an oxygen cylinder behind. Now, this oxygen cylinder they have not obtained from any hospital or any other oxygen center. They have managed to get this oxygen from a garage, their friend's garage. It was a beg borrow steal situation for them, because 5 people from this family were infected with the virus, and out of those 5, 2 have lost their lives. Now here you can see their mother Ramabai Anarse and her son Digambar Anarse lost their life fighting this virus. Now the tragedy over here is that they, like the other cases, even they could not get a hospital bed. After they tested positive, Digambar was unable to get a bed. Here these people, his family, his brother, he claims that he did not have money to pay the hospitals. They were demanding sums like 1 lakh, 2 lakh for admission. They did not have the money. They roamed around entire Nashik, entire Nifad with their property papers. They were ready to sell off their fields. They were ready to mortgage their fields if doctors insisted. So in one hand with the property papers, and on the other hand the ailing patients who needed immediate medical assistance, they went around the entire city, roamed around for 2 to 3 days, but they could not get a bed. The mother died without even knowing that her son had expired. Same, she also could not get any bed. She died here in the home only, as they attempted a treatment at their home. They tried to treat her because she had a problem in her leg. She could not be shifted anywhere. Ambulances could not come here, and she died at home also. So let's hear it out from them. अगर बताइए, जो दो डेथ्स हुई है आपकी फैमिली में, किन हालातों में हुई, उनको बेड मिला कि नहीं मिला, और क्या दिक्कतें हैं आपको बेड खोजने में? हमने जो हमारी माँ थी जी, उसको 21 का स्कोर हो गया. हम सब हॉस्पिटल ढूंढा. डॉक्टर ने उसके उम्र के वजह नहीं बोला हमको. हमने घर में उसको ट्रीटमेंट दिया. हमको इस बात का बुरा लगता है, हमारा जो भाई है उसका उम्र था 43. उसको हॉस्पिटल में हम 2 दिन घुमा, किधर हमको बेड नहीं मिला. उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी. हमको इस बारे में बहुत दिक्कत आ गई, हमको परेशानी आ गई. पैसा दे के भी हमको उसको हम बचा नहीं सके. ये हमको बहुत बुरा लगता है. मेडिसिन के बाजे में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसकी बहुत दिक्कत आ गई हमको. हम घर में 3 आदमी थे और 5 पेशेंट थे. 5 पेशेंट अलग अलग जगह थे. ये उसको सबको संभालना बहुत मुश्किल हो गया. एम्बुलेंस टाइम पे नहीं मिला तो भाड़ा भी किराया ज़्यादा लग गया. ग्रामीण भाग में हमको बहुत ही परेशानी हो गई. नासिक में गए तो हमको डिपॉजिट देके भी पेशेंट को नहीं रख सकता. हमने बाद में जो मेडिकल कॉलेज है, खूब दिक्कत से उधर कसरत किया और हमारा एक पेशेंट उधर एडमिट किया, लेकिन वो भी बचा नहीं उधर. काका, आप बता रहे थे कि आप अपने खेत के पेपर्स लेके घूम रहे थे, वो क्यों, वो बताइए. टाइम पे पैसा नहीं था ना किसान के पास. पैसा नहीं था. डॉक्टर लोग डिपॉजिट मांग रहे थे 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया. हमारे जेब में खाली 12,500 रुपये थे. 12,500 में तो हमको तो अंदर भी नहीं आ सकते थे, जा सकते हम उसके हॉस्पिटल में. हमने पेपर लिया खुद में, हमारे घर में थे पेपर. ये पेपर रखो, लेकिन हमारा पेशेंट एडमिट करो. अच्छा, ये पोजीशन हमको हो गया. उधर बहुत प्रॉब्लम हो गया. बाद में पैसे का तो वांदा सब प्रॉब्लम आ गया, लेकिन पेशेंट भी गया ना हमारा. अच्छा, तो क्या कितने हॉस्पिटल्स घूमे, कितने दिन घूमे, अब क्या क्या प्रॉब्लम आई? नासिक में 2 दिन पूरे हॉस्पिटल घूमा. हाँ. अपोला, सिग्मा, उसके बाद जो हॉस्पिटल बड़े छोटे बड़े सब घूमा. किधर ही नहीं मिला हमको जगह. ऑटो बेड नहीं था, बेड से खाली नहीं था. डिपॉजिट ज़्यादा मांग रहे थे, इसलिए हमारी बहुत परेशानी हो गई. हमने मेडिकल कॉलेज में वो पेशेंट को भेज दिया.
अच्छा एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए वहाँ पे आप जाके वापस आए। क्या हालात थे वहाँ पे? जो O2 बेड पे जो पेशेंट थे उसके ही सामने अपनी चटाई रहती है ना, उस पे पेशेंट लोग लेटे थे, क्योंकि वो बेड उनको मिलने वाला था। वेटिंग पर थे उस बेड के लिए। उधर तो हमारा पेशेंट ले भी नहीं जा सकते थे, हमें इमरजेंसी थी एडमिट करने की। हमारे चाचा का स्कोर था 14 और हमें ICU की ज़रूरत थी, बाईपैक ICU थी। और इसीलिए हम लगभग 2 दिन उनको नैताला करके कोविड सेंटर है उधर रखे O2 पे। और डॉक्टर हमें बोले कि उसको बाईपैक ऑक्सीजन चाहिए अर्जेंटली, इमरजेंसी, उनका स्कोर बढ़ गया होगा। इसीलिए हम 2 दिन नासिक में घूमे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, लेकिन पैसे की वजह से और O2 के बेड वजह से हमें बहुत ही परेशानी हुई। बाद में हमें MEP कॉलेज मेडिकल कॉलेज है नासिक को, उधर उनको एडमिट किया। फिर उनको ICU में लेके गए हो उधर। तब तक एम्बुलेंस में उनका O2 लगभग ड्रॉप हो गया, 65 हो गया था। हाँ, वो इमरजेंसी करके हमने उनको ICU में एडमिट किया। मुझे लगता है तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। अच्छा एक बात बताइए, क्या होश में थे? आपसे बात कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे? मेडिकल कॉलेज का रूल ऐसा है मैडम कि वो लोग पेशेंट को मिलने नहीं देते, तो अंदर जाने भी नहीं देते। वैसी परमिशन उन्हें देनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, उनकी माँ की भी डेथ हुई थी, राइट? तो क्या उनको पता था कि उनका बेटा गुजर गया था? माँ को नहीं बताया, ये भाई को भी हमने बताया नहीं। 8 दिन घर में 2 आदमी गए, हमने जो 3 पेशेंट है उसको बताया नहीं। टोटल कितने थे जो इन्फेक्टेड थे? 5 पेशेंट, 6 पेशेंट। कौन कौन? मेरे पिताजी, भाई, चाचा, चाची, माँ, भाई और अजी। तो जब उनकी डेथ हुई थी आपके भाई की, राइट? नहीं, भाई की, चाचा की। सॉरी, चाचा की जो डेथ हुई थी, तो घर में आपने बताया था? नहीं बताया था। पेशेंट की हालत नहीं थी, हमारी भी और पेशेंट की भी। वो एडमिट थे, हम बाहर थे, हमने सब उनका क्रियाक्रम बाहर ही किया। और उनको घर जब लाया गया तब 4-5 दिन के बाद उनको बताया, वो भी डॉक्टर के अंडर। हाँ। अच्छा ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप यहाँ पे लेके आए हैं इनके लिए, वो कैसे आपने अरेंज किया? मेरे भाई का गैरेज है, उसके पास सिलेंडर पड़ा था। उसको मैंने बोला मुझे उसकी ज़रूरत है, वो मुझे भर के दो। उसने नासिक से नांदूर ला के दिया वो। और मैं जब डिस्चार्ज था मेरे भाई का, तब वो O2 मास्क लेके आया और वो रेडी करके रखा, क्योंकि किसी भी पेशेंट को उसकी ज़रूरत थी कभी भी। 2 पेशेंट का स्कोर, मेरे भाई का स्कोर 21 था, पिताजी का 12 था, माँ का 10 था और चाची का 8 था, और जो अंकल गुजर गए उनका 14 था। और मेरे आजी थी, उसका स्कोर लगभग 20+ था। आजी को आप हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा सके? उनकी एक टांग का ऑपरेशन हुआ था, उसमें रॉड डाला था। एक डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया वो बोला कि वो उनको अब कहीं भी नहीं ले जा सकते। बट कोशिश की आपने उनको एडमिट कराने की? कोशिश फुल की हमने। टैबलेट है ना, वो टैबलेट नहीं ले सकते थे वो कोरोना की। अच्छा। मुंह में वो ये गए थे, ये मुँह आ गया था ना, इसलिए। तो लेकिन उनके लिए भी आपने कहा कि बेड मिलना मुश्किल था? मुश्किल था ना, मिला नहीं ना। जो लड़के भाई को नहीं मिला तो माँ को कैसे मिले? अच्छा। भाई कुछ नहीं मिल रहा था, 2 दिन नासिक घूम के भी, तो माँ को नहीं मिल सकता ना, उधर प्राइवेट में भी नहीं था। तो आपकी माँ से आपकी आखिरी बात क्या हुई थी? वो पूछ रहे होंगे अपने बेटे के बारे में? बेटे के बारे में पूछ रहे थे, उनके जो बहू के बारे में पूछते, बड़े भाई के बारे में पूछ रही थी, किधर है वो, दिख रहे नहीं। हम बोल रहे थे वो कार्यक्रम में गए, एक बीमार है। 2 दिन हमने ऐसे रखा, तीसरे दिन उसने जान छोड़ दी। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये सब अरेंजमेंट उनका बाहर, उनका फ्यूनरल का अरेंजमेंट्स, घर में सबकी देखभाल, जो बीमार थे, ये कैसे मैनेज किया आप लोगों ने? हमने 4 आदमी ने PP किट लाया। हाँ। माँ अंदर थी पड़ेली, 3:30 ये टाइम से माँ ने 3:30 बजे तक दम छोड़ दिया। हम निफर गए, निफर से PP किट लाया,
चारों भाई ने हमने पीपी किट पहन लिया, माँ को बाहर निकाला और ट्रैक्टर में लेके स्मशान डेड बॉडी पैकिंग के लिए भी कवर था। वो फुल पैकिंग में हमने अंतिम संस्कार किया उनका। ट्रैक्टर पे लेके गए? ट्रैक्टर पे गाड़ी भी नहीं थी, आदमी नहीं, हमारा घर का खुद का ट्रैक्टर, खेती का छोटा ट्रैक्टर। ओके, तो बाहर से आपने मदद मांगी होगी? नहीं, ये हालत में तो भाई भी नहीं आता ना, लोग नहीं आते, लोग नहीं आते, नहीं आते, डर रहे थे? डर रहे थे, फिर सब डर रहे थे ना। हमारे भाई भी नहीं आए ना, बाकी के दूसरे भाई। अच्छा वो आजारी ऐसा है का लोग डर गए इधर के बहुत। अच्छा, मतलब वो खुद नहीं आए अंतिम संस्कार के लिए? अंतिम संस्कार में 5-6 आदमी ने किया। ये जिला परिषद के माजी सदस्य हमारे साथ थे, माजी सरपंच वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत हमको मदद भी की। दूसरे लोग आए नहीं ना, गाँव वाले तो कुछ आते नहीं ना। आपके खुद के फैमिली वाले नहीं आए? खुद के सामने वाले भी नहीं आए। ठीक है, सो दिस वॉज दी अनारसे फैमिली हु से दे टुक आउट Miss Ramabai Anarse, her body on a tractor till the cremation ground. No one came to help them, not even their relatives came for the last rites, fearing this dreaded virus. Now, as you know, the medical facilities over here, it is not that there are any less hospitals. Nashik has almost, I think, 150 private hospitals, 5 government hospitals, but nowhere they could find a bed. This story goes on, I think, for most of the 18 villages which are spread out over here in the rural Nashik area. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Nifad. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.